Hey guys, it's Ankit Kumar. Welcome to my second video about GraphQL, and it's about Introduction to GraphQL Part 2. Part 1 में हमने देखा Introduction to GraphQL, GraphQL क्या है, GraphQL किसने बनाया, GraphQL को बनाने का, डेवलप करने का मेन गोल क्या था, GraphQL को कौन मेंटेन करता है अब, ये सब कुछ देखा। फिर हमने एक ब्लॉग ऐप एज एन एग्जांपल ली थी जिसमें हमने कंपेयर किया था GraphQL वर्सेस रेस्ट। फिर हमने देखा कि GraphQL सिर्फ रिएक्ट डेवलपर्स के लिए नहीं है। फेसबुक ने 2012 में GraphQL को अपनी नेटिव ऐप्स में यूज़ किया था। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे GraphQL स्कीमा, GraphQL स्कीमा डेफिनेशन लैंग्वेज, रिजॉल्वर्स के बारे में जानेंगे। Then we will learn bit about Apollo server. Then we will set up our project from scratch. Then we will set up Apollo server for GraphQL. Then we will learn about GraphQL query. Query के लिए schema लिखेंगे, GraphQL query के लिए resolver लिखेंगे, फिर GraphQL query को टेस्ट करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे म्यूटेशन स्कीमा लिखेंगे, म्यूटेशन रिजॉल्वर लिखेंगे और म्यूटेशन को टेस्ट करेंगे। और ये सब हम करने वाले हैं टाइपस्क्रिप्ट में एज ए लैंग्वेज। सो गाइस, मैंने एक फोल्डर बनाया है GraphQL डेमो, जो अभी बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आई एम गोइंग टू init this project as npm with the default values. So it has initialized this GraphQL demo directory as npm directory with the default values. आप package.json में जाके चेक कर सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज और कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं कोडिंग के लिए, तो हमें टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करनी है। सो वी विल रन npm install dev typescript installing as dev dependency. After successful run, you will see TypeScript has been added to dev dependencies in your package.json. अब हमें यह प्रोजेक्ट टाइपस्क्रिप्ट इनिट करना पड़ता है विद सम डिफॉल्ट ऑप्शंस। सो हमारी रूट डायरेक्टरी होगी src, हमारी आउट डायरेक्टरी होगी टेस्ट, लिब हम यूज करेंगे डोम एंड ES6 मॉड्यूल JS and we will remove comments. ये कमांड रन करने के बाद हमें मैसेज दिखेगा क्रिएटेड सक्सेसफुली tsconfig.json फाइल। अगर हम tsconfig.json फाइल में जाते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे मॉड्यूल कॉमन JS है, लाइब्रेरी डोम है, ES6 है, आउट डायरेक्टरी डिस्ट है, रूट डायरेक्टरी src है, रिमूव कमेंट्स ट्रू है। हम नोडमोन और ts नोड यूज करेंगे अपना प्रोग्राम रन करने के लिए। तो नोडमोन और ts नोड को भी डेव डिपेंडेंसी की तरह इंस्टॉल कर रहे हैं। आफ्टर इंस्टॉलिंग सक्सेसफुली nodemon and ts node, we can go to package.json and we can verify whether these dependencies has been added or not. nodemon क्या करता है? nodemon प्रोजेक्ट को वॉच करता रहता है। अगर हम प्रोजेक्ट में कोई भी चेंजेस करते हैं तो ये प्रोजेक्ट को ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर देता है उस चेंज के साथ। ts node used for transpiling ts files into js files step by step. Create src folder. src folder क्यों? क्योंकि हमारी रूट डायरेक्टरी src है। Inside src folder you can create one file called server dot ts and console hello world from server dot ts. Run this file using nodemon and transpile using ts node. Run this file, you will see hello world from Ankit as a result because we have consoled it out, right? Press Ctrl C to stop your server on Mac OS and I think Ctrl C on Windows as well. चलो अब server dot ts को Apollo server में कन्वर्ट करते हैं। We will set up Apollo server for GraphQL now. Why Apollo server? Apollo server is most matured server for GraphQL until now. Apollo server हमारे लिए ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंटेशन भी करता है। जब हम क्वेरी लिखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि डॉक्यूमेंटेशन इसने कैसे किया है। So let's start. We have to install few dependencies for Apollo server. So install Apollo server
and Express. Express will be used as middleware for Apollo Server and GraphQL. So we are installing Apollo Server Express and Express. So it has been added successfully to my dependencies. I can check. I can go to package.json and check under dependency section. क्योंकि हम लोग टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं कोड लिखने के लिए, तो हमें टाइप्स स्पेसिफिक डिपेंडेंसीज ऑफ एक्सप्रेस इंस्टॉल करनी है. So we are installing type/express as dev dependencies. Run it and install it. It will be added as dev dependency under dev dependencies of package.json. Let's now set up server.ts file. So we are going to import express from express. I am going to import something from Apollo Server Express, and this something is going to be Apollo Server. Create करेंगे Express server create करेंगे using Apollo Server. Apply middleware Express as app, and path will be /GraphQL. Send on port 7000 और हम console log करेंगे. Our server is done. So this is the basic setup of Apollo server with Express for GraphQL. If we run this command now using node mode, it will give error. So Apollo server is giving one error. It's saying Apollo server requires either existing schema, module or type types. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि बिना स्कीमा के हम अपोलो सर्वर को रन नहीं कर सकते. रन कर सकते हैं बट इट विल नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड. तो चलिए स्कीमा क्रिएट करते हैं. क्रिएशन के लिए हम SRC में एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, स्कीमा फोल्डर. उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे schema.graphql. सो schema.graphql में हम सारे स्कीमा लिखेंगे. स्कीमा क्या होता है? स्कीमा इज रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शंस एंड डेटा. इंट्रैक्शंस क्या होता है? इंट्रैक्शंस होता है क्वेरी एंड म्यूटेशन. डेटा क्या होता है? जो भी हमारे डेटा टाइप होता है वो डेटा होता है. अब हम क्वेरी लिखेंगे. यहाँ पे हम क्वेरी डिफाइन कर रहे हैं टाइप क्वेरी, जो रिजर्व्ड कीवर्ड है, और हमारी क्वेरी होगी हेलो वर्ल्ड, जो एक्सेप्ट कुछ नहीं करेगा लेकिन रिटर्न करेगा स्ट्रिंग. ये ग्राफक्यूएल स्कीमा है. स्कीमा डिफाइन करने के लिए हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं जिसको हम ग्राफक्यूएल स्कीमा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलते हैं. सो ग्राफक्यूएल स्कीमा डेफिनेशन लैंग्वेज में कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं. ये क्या क्या होते हैं? ये होते हैं स्ट्रिंग, ये होते हैं इंट, फ्लोट, बूलियन एंड आईडी. तो ये 5 बिल्ट इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं ग्राफक्यूएल डेफिनेशन लैंग्वेज के. आईडी इज यूनिक आइडेंटिफायर. हमने स्कीमा बना लिया है, बट स्कीमा विदाउट रिजॉल्वर इज नथिंग. सो अब रिजॉल्वर लिखते हैं. लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल कॉल्ड रिजॉल्वर्स. यस, रिजॉल्वर जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये रिजॉल्व करता है. क्या रिजॉल्व करता है? जो भी रिक्वेस्ट आई है क्लाइंट से, ग्राफक्यूएल क्लाइंट से, रिक्वेस्ट के बेस पे डेटा को रिजॉल्व करता है ताकि रिटर्न कर सके रेस्पॉन्स पे. हमने जस्ट अभी क्वेरी के लिए स्कीमा लिखा, तो हम क्वेरी के लिए रिजॉल्वर लिखेंगे. रिजॉल्वर लिखने के लिए हमें ग्राफक्यूएल टूल से कुछ इंपोर्ट करना होगा. तो ग्राफक्यूएल टूल को इंस्टॉल
करना होगा। सो हम इंस्टॉल कर रहे हैं GraphQL टूल्स। GraphQL tool 6.2.4 has been added to our dependencies. हम package.json में जाके चेक कर सकते हैं GraphQL tool ऐड हो गया है। तो resolvers लिखते हैं। So we have to import something from GraphQL tools, and that something is iResolvers. Find resolvers, iResolvers. All query resolvers will go under query. So हमारी query थी hello world, कुछ accept नहीं कर रही थी but return कर रही थी string। ये hello world जो resolver है और hello world जो schema है, it has to match exactly. Export resolvers as default. Now we are running our server again and checking whether it's working or not. So Apollo server अभी भी same error दे रहा है। Apollo server requires either existing schema, modules और type types. तो अब क्या गलती हुई? अब ये गलती हुई कि हमने ये क्रिएट तो कर दिए हैं बट इनको यूज नहीं किया है। अपोलो सर्वर को अभी तक मालूम ही नहीं है कि हमारे पास स्कीमा और रिजॉल्वर्स हैं। इनको ऐड करते हैं। अगर हम अपना server डॉट टी एस देखते हैं तो स्कीमा यहाँ पे ऐड करना होता है। स्कीमा यहाँ पे ऐड करने के लिए हमें स्कीमा यहाँ तक लाना होगा। स्कीमा यहाँ तक लाने के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है आज के टाइम पे वो है रिजॉल्वर और स्कीमा को मर्ज करना। तो एक फाइल क्रिएट करते हैं schema.ts. schema.ts is for adding resolvers to schema. resolvers में schema ऐड करने वाले हैं, उसके लिए हमें कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए। schema और GraphQL resolvers को मर्ज करने के लिए हमें कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए। These dependencies has been added to my package.json successfully. Now let's write schema.ts file. So for schema.ts, I will import something from GraphQL file loaders. I'm going to import something from I'm going to import something from GraphQL file schema. File loader from GraphQL file loader. Load sync schema from load resolvers to schema from schema. Creating a variable with called schema with resolvers. Load all the GraphQL schema from file. हमारे सारे GraphQL schema है src/schema/schema.graphql फाइल में। हमारा लोडर है GraphQL file loader. Now adding resolvers to schema. Schema as schema with resolvers and resolvers as resolvers. So it has automatically imported resolvers from resolver.ts file. Now we have to export it. So schema with GraphQL resolvers को as a schema export कर देते हैं so that we can use it in our server.ts. Now go to server.ts, import schema from file schema and enable Python for testing. अब रन करके देखते हैं अपने प्रोजेक्ट को। अब हमारा अपोलो सर्वर रन कर रहा है 7000 पोर्ट पे। कमांड क्लिक ऑन दिस। On playground you can see documentation generated by GraphQL server automatically for us. हमने क्वेरी ही ऐड किया था और ये एज क्वेरी आ गई है, तो अब हम इसको कॉल कर सकते हैं। क्वेरी कॉल करने के लिए हमें टाइप करना होता है क्वेरी और क्वेरी का नाम और क्लिक ऑन दिस प्ले बटन। सो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम अपोलो सर्वर इज वर्किंग नाउ परफेक्टली फाइन। कमेंट करके अपने फीडबैक को सजेशन देना हाउ यू आर फीलिंग। चलिए आगे चलते हैं और ऐड करते हैं म्यूटेशंस। म्यूटेशन ऐड करने के लिए वी हैव टू ऐड GraphQL म्यूटेशन स्कीमा
म्यूटेशन ऐड करेंगे, म्यूटेशन का नाम होगा ऐड यूजर। तो नाम से क्लियर है, हम एक यूजर ऐड करने वाले हैं एग्जिस्टिंग यूजर्स में। एग्जिस्टिंग यूजर्स डेटाबेस में भी हो सकते हैं और किसी फाइल में भी हो सकते हैं। ऐड यूजर के टाइम पे नेम कंपलसरी होगा पास करना और बायो ऑप्शनल होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्कीमा इंटरेक्शन और डेटा का रिप्रेजेंटेशन है। डेटा क्या होता है? वो हर टाइप या हर ऑब्जेक्ट जो हम यूज कर रहे हैं बट जिससे इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। इंटरेक्शन किससे होता है? क्वेरी और म्यूटेशन से। उसके अलावा जितना भी डेटा होता है वो डेटा कैटेगरी में आता है। तो यूजर ऑब्जेक्ट इज डेटा हियर। नाउ वी हैव एडेड स्कीमा for our mutation. Let's add resolver for our mutation as well. So resolver ऐड करने के लिए हमें म्यूटेशन टाइप का रिजॉल्वर ऐड करना है। तो सारे म्यूटेशन रिजॉल्वर म्यूटेशन कैटेगरी के अंदर जाएंगे। हमारे म्यूटेशन का नाम था ऐड यूजर। यूजर्स को ऐड करना है तो हमारे पास डीबी होना चाहिए, बट अभी हमारे पास डीबी नहीं है। लेट्स क्रिएट वन एरे सो दैट वी कैन ऐड यूजर्स टू दैट एरे। users is equal to an array of object of users. Object has id 1, name Ankit, bio not developer, एड यूजर के रिजॉल्वर में हम एक वेरिएबल बनाएंगे यूजर जिसमें आईडी होगी आईडी हाइफन इंक्रीमेंट ऑफ काउंट, नेम होगा args डॉट नेम, बायो होगा args डॉट बायो। यूजर्स एरे में इस यूजर को ऐड कर देंगे। यूजर को कंसोल कर लेते हैं तो ताकि हम देख सकें कि ऐड हुआ है नहीं हुआ है। और रिटर्न मॉडिफाइड यूजर्स, एडिड यूजर्स। आपने नोट करा होगा हमारा सर्वर बंद नहीं हुआ है। हमारे हर चेंज पे सर्वर was restarting due to changes, server was restarting due to changes, or server is still running. So go back to your browser, reload your playground and check documentation. तो आप देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन में ऐड यूजर नाम का एक म्यूटेशन आ गया है। ऐड यूजर में हमें पास करना है नेम, नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा और वो मैंडेटरी है। बायो पास करना है एज स्ट्रिंग बट वो ऑप्शनल है, वी कैन स्किप इट। यूजर हम रेस्पॉन्स में मिलेगा। यूजर में हमें क्या मिलेगा? यूजर में हमें मिलेगा आईडी नेम बायो। नेम इज स्ट्रिंग, बायो इज स्ट्रिंग। लेट्स नाउ टेस्ट म्यूटेशन। टाइप म्यूटेशन will pop up options for you. Name, pass with Kumar. Bio is optional, you can skip it, and you are expecting in response ID, name, bio. Click on play, it will add users. If you go back to your console, you can see array was of 2 users when added first, and array was of 3 users when added second time. Now array is of 4 users when added 4 times. If I pass bio, also it will add bio as well. अब मैं पास कर रहा हूँ बायो ग्राफक्यूएल एक्सपर्ट और आईडी और नेम और बायो रेस्पॉन्स में ले रहा हूँ। सो इफ वी सी इट्स कीप चेंजिंग आईडी एंड इट्स एडिंग दैट user object to existing array of users. So we can see on our console every object with different ID is being added to array of users.
So we have covered GraphQL schema definition language, GraphQL resolver. हमने थोड़ा GraphQL अपोलो सर्वर के बारे में जाना। अपोलो सर्वर हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि अपोलो सर्वर इज मोस्ट मैच्योर्ड सर्वर फॉर GraphQL। अपोलो सर्वर हमारे लिए ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंटेशन करता है। हमने सेटअप किया प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, फिर हमने अपोलो सर्वर सेटअप किया GraphQL के लिए, फिर हमने GraphQL क्वेरी लिखी, क्वेरी को समझा क्वेरी क्या होती है, फिर क्वेरी को टेस्ट किया, फिर हमने GraphQL म्यूटेशन का कोड लिखा, उसको समझा और उसको टेस्ट किया, और ये सब कोड हमने लिखा टाइपस्क्रिप्ट में। So thanks guys, that's all for this video, and next video is going to be more interesting about GraphQL, so stay tuned. Thanks. Please comment your suggestions so that I can improve in next video. Thank you.